तो कैसे हैं दोस्तों? शानदार, मैं भी शानदार दोस्तों। आज सब कुछ करने से पहले अब आवाज सुनिए एक। Well, first of all, the drug angle is being investigated by the Narcotics Bureau, and they have their own staff, so it's not a diversion by any means. But the more important thing you see is under the law, and the Supreme Court has repeatedly said this in a number of cases. When you get an information, whether there is proof in it or not proof in it, but if you get an information, you have to register an FIR. And that is what we used to criticize the Bombay police not doing for 67 days or 77 days or whatever. Now the CBI has sufficient information, and from whatever I have heard here and there in Delhi, the All India Medical Institute has also said in its report that although we have not been able to examine the body, but we don't rule out murder. So that's sufficient for the CBI to register an FIR. Under section, murder is under section 302 of the IPC, and there is no excuse for any further delay, because the final report is, of course, what we call as the charge sheet, but the FIR is registered the moment somebody comes and says that I just saw a dead body in such and such place. The fellow doesn't have to go. Police doesn't have to go and see whether there is a dead body there. You just note the name of the complainant or the informer, and then register an FIR, and then the investigation starts. So I don't understand why the FIR should not be registered immediately under section 302. Meanwhile, Dr. Swami, Riya Chakraborty's lawyer has also released a statement saying that there should be a new board, a new panel, medical board, which should be constituted to investigate this case, because the kind of statement that Mr. Vikas Singh has made is suggesting that the agencies are now being pressurized to reach some kind of a predetermined outcome. How will you like to respond? I don't think it's possible, given the kind of people who constitute the AIMS board. They couldn't do it in Sunanda's case, they can't do it in this case. Okay, and last question, sir, before we let you go. Now, the Mumbai Police's probe was being blamed. And a point, and I also think, what are you waiting for? I would ask the CBI director. He is not supposed to ask the ministry under which the CBI is answerable for parliament questions and so on. But, he doesn't have to take any instruction from any minister or the Prime Minister who is in charge of that ministry. So he has, the moment he's got information, he has to register an FIR. We gave him some time because they are coming in after already the Bombay police had, done a lot of hera-pheri with the information. So, but now this, they should have done it maybe 10 days ago. I don't understand why they are delaying it any further, because it's against the law to delay it any further. तो दोस्तों, ये इनकी आवाज, आप जानी पहचानी आवाज है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, अपनी जबरदस्त बातों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, बयानों के लिए, और मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट अगर कोई खंबे जैसे खड़े रहे पिलर की भांति, तो वो डॉक्टर स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी। और इनकी खास बात यह है काम करने की कि ये सबूतों के साथ बात करते हैं। बिना सबूत के बेसिर पैर की बातें तो ये करते ही नहीं है, सबूतों के साथ बातें करते हैं, और इतनी गहरी बातें करते हैं ये कि मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इनके सबूतों की कोई काट रहती है। और यहाँ पर जो सुशांत के केस में ये बोल रहे हैं कि सीबीआई आज कोई 100 या 100 दिन बताया उन्होंने, तो मेरा भी पहला वीडियो है, मैं उसमें से डेट भी देख सकता हूँ। सुशांत की 14 तारीख है कि कौन सी डेट है, तो वहां से अगर हम गिनते हैं तो 100 दिन के करीब पूरे होने को आ गए हैं, और अभी तक सीबीआई के हाथ में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यहां पर यह कह रहे हैं कि सीबीआई पूरी कैपेबल है। अभी 7-8 दिन से वो दिल्ली में है, सीबीआई पूरी कैपेबल है, और सीबीआई के पास पूरे अपने काम, अपने सबूत और साक्ष्य सभी कुछ है, और सीधे पीएमओ को, प्रधानमंत्री को वो रिपोर्ट कर दी है। लेकिन एक चीज डाउटफुल यहां आ रही है कि जो सीधे प्रधानमंत्री के पास तो वो आते हैं, लेकिन उनके जो सचिव हैं, सेक्रेटरी, उनके थ्रू टाइम वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का शेड्यूल बहुत बहुत टाइट है, बहुत बहुत टाइट होता है। मोदी जी का तो बहुत ही ज्यादा टाइट है।
तो ये इतने टाइट शेड्यूल में से अगर कोई बातें निकालना या टाइम निकालना या समय दे पाना बहुत कठिन होता है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक ये कह रहे हैं कि ये जो सेक्रेटरी हैं वो शरद पवार के भी सेक्रेटरी रहे हैं, उस लॉबी से है। और बहुत खुल के भी इन्होंने कहा है कि दाऊद कंपनी के जो डी कंपनी के लिंक्स हैं, जो डी कंपनी के लिंक्स हैं बोले, वो भारत में बहुत गहरे हैं। और शरद पवार और लॉबी पे अक्सर ही आरोप लगते रहे कि डी कंपनी का पैसा चलाने वाली अगर कोई लॉबी है तो वो शरद पवार एंड कंपनी है। तो यहां पर यह देखने वाली बात है कि क्या पीएमओ के सेक्रेटरी जान के सुशांत सिंह के केस में कोई डिले कर रहे हैं? क्या ऐसा संभव है कि वो प्रधानमंत्री तक सही बातें ना पहुंचाए? या अगर वो सेक्रेटरी शरद पवार के खेमे से हैं या उनको असिस्ट किया है, जो भी उनके समय में रहे हैं ऑफिस में, वो मालूम नहीं है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। क्या ये मोदी के संज्ञान में नहीं है? क्या मोदी इसे नहीं जानते हैं कि ये जो सेक्रेटरी हैं वो शरद पवार के समय में भी सेक्रेटरी रहे हैं? तो अब ये दोनों ही बातें हो सकती है कि मोदी को ही समय ना हो कि इतने, मतलब वो जो मोदी के टाइट जो शेड्यूल है उस वजह से सुशांत सिंह के केस में जो सीबीआई की तरफ से देरी हो रही है वो हो सकती है। लेकिन मेरा अपना भी मानना है, मैंने आप जब ये आई थी आप आम आदमी पार्टी, उस समय ऐसे ऐसे लोगों को देखा था राजनीति में उछल कूद करते हुए। तो ये तब समझ में आया था मुझे कि जो एक लॉबी होती है जो पैसा कमाना या कूटना जानती है, की फैक्टर पे बैठती है, ये जो मतलब हम जो देश प्रेम और ये भारत, ये जो बातें करते हैं ना, ये वाली लॉबी करती भी होगी नहीं भी करती होगी वो मैटर नहीं है, लेकिन इनका जो पैसे कमाने का जो भूख होती है वो इन सब के ऊपर होती है। या ये अपने को मिले हुए जो मौके होते हैं उनको हमेशा कैश करना पसंद करते हैं और ताकत में रहना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। लिंक जो होते हैं इनके ये छोटे नहीं होने देना चाहते। तो यहां पर मैंने देखा कि मुंबई में तो अभी पूरी तरह से ही शरद पवार फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और कांग्रेस का तो कोई जमीनी आधार बचा नहीं है। उद्धव ठाकरे खुद नेशनल मतलब शरद पवार को और सोनिया गांधी की पार्टी को समर्थन देके मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन इनके ग्राउंड रूट पे जो शिव सैनिक होता था कभी बाला ठाकरे का, वो खत्म हो चुका। आज यदि वोट अगर देने भी जाए तो शिवसेना को तो एक वोट भी शायद ही कोई दे, वो खुद ही दे दे अपना, तो बात अलग है। वरना शिवसेना वहां से खत्म हो गई है। कांग्रेस का कोई कैडर नहीं है, कांग्रेस सिर्फ नेताओं की पार्टी बची जो ट्विटर खेलती है। एनसीपी महाराष्ट्र में अभी जब तक इनकी सत्ता है, उद्धव सरकार है, ठाकरे गवर्नमेंट है, तब तक शिवसेना अपना शरद पवार का पावर चलेगा जब तक चुनाव नहीं आते या मध्यावधि चुनाव की घोषणा नहीं की जाती। दोनों की संभावनाएं बहुत कम है। अभी तो वो जैसे तैसे खींच तान के ये निकालेंगे। अभी बिहार चुनाव है, तो यहां ये देखने वाली बात यही आ रही है कि क्या ये लॉबी पीएमओ ऑफिस को भी या सीबीआई के कामों को भी डिले कर सकती है। यदि ऐसा है तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हैं, जो डायरेक्टली अगर पीएमओ को या मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को अगर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो निश्चित ही संज्ञान लेंगे या उन्हें लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस व्यू पर, इस बात पर, इस वीडियो पर आपके क्या कमेंट हैं आप मुझे बताएं। और मैंने एक क्वेश्चन भी शुरू किए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आप महाभारत में भीम के कैरेक्टर का नाम बता सकते हैं? जिन कलाकार ने भीम का किरदार निभाया है, उन कलाकार का नाम अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में लिख के बताएं। और यहीं से मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं। जो भी मित्र मुझे ग्रुप एनजीओ शिक्षा के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी मुझे भी सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे काम को की प्रशंसा करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और जो शिक्षा के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं, मेरा DBTE जो मैं हैशटैग चलाता हूं, हैशटैग D जो कैपिटल है, बाकी स्मॉल में है, DBTE एजुकेशन, है ना। DBTE एजुकेशन अलग से मैं लिख देता हूं क्योंकि DBTE और टेक्नोलॉजी वालों का भी है हैशटैग,
तो वो क्लैश ना हो जाए, इसलिए मैं दोनों हैशटैग अलग अलग रख के बताता हूँ, DBTE एजुकेशन। तो यहां पर भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। भारत माता की जय।